Welcome to the today's lecture. Today we will discuss mutual induction, coefficient of mutual induction, units of mutual induction, and then we will derive the expression for the mutual inductance of two coaxial solenoids. Well, we have discussed about the self-induction, where we were changing the current in the coil. By changing the current in the coil, what was happening? An induced EMF was produced in that coil, which was opposing any change, any increase or decrease of current in the coil. Now today we will discuss mutual induction. In case of mutual induction, we take two coils. Suppose we have two coils here. This is one coil. Let us call this coil P. This is coil P, and this coil P is called the primary coil. This primary coil is connected to a battery B through key K. Very close to this coil, we have another coil. That coil is called as secondary coil, and that secondary coil is connected to a galvanometer G. Now, म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है? म्यूचुअल इंडक्शन एक वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा जब उसकी नेबरिंग कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड या ऐसे कहेंगे, the phenomena according to which an induced EMF is set up in one coil by changing the current in the neighboring coil. In case of self-induction, we have a single coil. We were changing the current in the same coil, and the EMF, induced EMF was produced in that coil, in the same coil. But here, induced EMF is set up in one coil when the current is changed in the another coil, neighboring coil. The phenomena according to which an induced EMF is produced or is set up in one coil when the current in the neighboring coil changes, increases or decreases. That phenomena is called as mutual induction. Or this mutual induction, it's a property of two coils. यहाँ देखो, it's a property of two coils, दो कॉइलों की एक property, by virtue of which each coil opposes any growth or decay of current, any change of current. It's a property of two coils, इन दो coils की property, by virtue of which each coil, हर एक coil opposes any change, growth or decrease of current in the neighboring coil. For example, this coil will oppose any change, growth or decay of current in primary coil by inducing EMF in itself. ये दूसरी coil जो है, इसमें induced EMF पैदा हो जाएगा. वो induced EMF जो करंट आप चेंज करोगे प्राइमरी coil में, चाहे इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, उसको यह अपोज करेगा. इसीलिए मैंने कहा, इट्स a property of two coils by virtue of which each coil opposes any change means increase or decrease of current in the neighboring coil by inducing an EMF. Or simply definition ये कहोगे, the phenomena according to which an induced EMF is set up in one coil by changing the current in the neighboring coil, another coil. See how we will explain this. For example, we have two coils here. This is primary coil. This primary coil is connected to key K through battery B. ये जो primary coil है, it is connected to battery B through key K. And this is the secondary coil. It's placed very close to the primary coil. This primary coil is connected to galvanometer G. Primary coil is connected to key K and battery B, while this secondary coil, it is connected to galvanometer G.
क्या देखा गया है, इट्स फाउंड दैट एज सून एज दिस की के इज प्रेस्ड, जैसे ही हम की के को प्रेस करते हैं यानी क्लोज करते हैं, जो सेकेंडरी कॉइल का गैल्वानोमीटर है इट शोज डिफ्लेक्शन। जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल की क्लोज करते हैं, सेकेंडरी कॉइल थोड़ा दूर है उसमें, लेकिन सेकेंडरी कॉइल का गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। डिफ्लेक्शन मींस एज सून एज वी प्रेस द की इन द प्राइमरी कॉइल, current begins to flow in the secondary coil. That current is called as induced current, and that current flows in the secondary coil by a phenomena called mutual induction, which we explain as. See, I will make one more diagram. आप यही diagram बनाना, I will make another diagram also. For example, this is my primary coil. This is key K. This is its battery. And this is key K. This is my secondary coil. This is connected to galvanometer G. See here. जैसे ही मैं की K को प्रेस करूंगा, ये जो प्राइमरी कॉइल है, करंट begins to flow through the primary coil. As soon as we will press the key K of the primary coil, what happens? The circuit gets closed. As a result of this, current begins to flow through the primary coil. When the current flows through the primary coil, what happens? A magnetic field is set up along this primary coil. A magnetic field is set up along this primary coil. Because whenever the current flows through the coil, जैसे ही current coil में flow होता है, coil में क्या बनता है? Magnetic field. जैसे ही मैंने की K को प्रेस किया, इस प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होने लगी और उस करंट ने इस प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया। नाउ जैसे ही मैं इस प्राइमरी कॉइल की में जो करंट फ्लो हो रही है, जैसे ही मैं ये करंट चेंज करूंगा, जो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, जैसे ही मैं इस करंट को चेंज करूंगा, चेंज कैसे करूंगा? इधर आई विल इंक्रीज इट और आई विल डिक्रीज इट। एज सून एज I will change the current in the primary coil, what happens? The magnetic field in it also changes. As a result, the magnetic flux linked with this primary coil also changes. जैसे ही मैं primary coil में current change करूंगा, जो इस coil में magnetic field बना, वो magnetic field change हो जाएगा. When magnetic field changes, magnetic flux changes. Because magnetic field flows in the form of magnetic field lines, and those field lines are called and the flow of these magnetic field lines is called as magnetic flux. Now, as soon as the current in the primary coil changes, the magnetic field inside the primary coil changes, because magnetic field is directly proportional to current. Now, when the magnetic field changes, the magnetic flux linked with the primary coil changes. Since this secondary coil is very close to the primary coil, it's very close to the primary coil, therefore the magnetic flux linked with this secondary coil also changes. चूंकि इस हाथ में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा, इस हाथ को मैं इसके सामने रखूंगा, जैसे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। As soon as the magnetic flux linked with the secondary coil changes, what happens? An induced EMF is set up in it. क्योंकि कॉइल एस जो है दिस इज वेरी क्लोज टू द प्राइमरी कॉइल। जैसे प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, उसी वक्त जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। क्यों? सेकेंडरी कॉइल इज वेरी क्लोज टू व्हाट कॉइल? प्राइमरी कॉइल। जब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। जब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगी। जब इसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगी, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। So, since the secondary coil is very close to the primary coil, therefore the magnetic flux linked with this secondary coil also changes. As a result, an induced EMF is set up in this secondary coil, and hence an induced current is set up in it, as shown by the deflection of the galvanometer. Now, the induced EMF set up in this secondary coil, this will oppose any change, increase or decrease of current in what coil? Primary coil. This phenomena by which
and induced EMF is set up in the secondary coil by changing the current in what coil? Primary coil. That phenomena is called as mutual induction. Very, very important phenomenon in physics. It is the principle of electric generator. It's the principle of this AC generator. वहां पर यही प्रिंसिपल है. तो यहां देखा आपने, क्या देखा आपने बच्चा, कि जैसे हम प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विद प्राइमरी कॉइल चेंजेस, लिहाजा प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा. चूंकि सेकेंडरी कॉइल इसके नजदीक है, लिहाजा सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा. जब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लिहाजा सेकेंडरी कॉइल में एक करंट फ्लो हो जाएगी. ठीक है ना. उस करंट को हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट एज इंडिकेटेड बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर. यह प्रोसेस, जिस प्रोसेस से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया, जब इस प्राइमरी कॉइल में हमने करंट को चेंज किया, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इस प्रोसेस, इस फिनोमेना को कहेंगे हम म्यूचुअल इंडक्शन. क्लियर? नाउ आगे जाएंगे हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस. कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसको बेटा हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स. देखो बच्चों कैसे करेंगे. जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्शन में, यहां पर भी ऐसे हम डिस्कस करेंगे. लेकिन यहां पर एक फर्क है, करंट को एक कॉइल में चेंज करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ दूसरी कॉइल में बनता है. नो डाउट जो प्राइमरी है इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन. मगर ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इसमें भी इंड्यूस्ड करंट बनेगी. ठीक है ना. हम ऐसे लिखेंगे, लेट I is equal to current flowing through one coil at any instant of time. मैंने बोला I जो है, this is the current flowing through one coil, एक coil में at any instant of time. Phi जो है, Phi is magnetic flux linked with another coil. Magnetic flux linked with another coil at that instant. At that instant. बच्चों यहां देखो, suppose I जो है, this is the current flowing through primary coil at any instant. Suppose जब current I primary coil में flow होती है, उस वक्त सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको मैंने क्या रखा, फाई. जितना करंट आपको पता है, आप करंट इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, आप करंट डिक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा. तो आपको पता है दिस फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई. इंक्रीज इन करंट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फ्लक्स, डिक्रीज इन करंट डिक्रीजेस मैग्नेटिक फ्लक्स. और फाई इज इक्वल टू एम आई. Let us call this equation number first. Phi क्या है? Mi. While ये जो m है, ये m जो है, this is constant of proportionality, constant of proportionality, and is called coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction, या इसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स. एम जो है बच्चों ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स. यहां पर टू कॉइल्स, वहां पर सिंगल कॉइल थी. अब इसको हम डिफाइन करेंगे. इफ I is equal to 1, अगर हम इस इक्वेशन में I को मान लेंगे तो हमें क्या बनेगा, phi is equal to m into 1, और m जो है वो बन गया बराबर phi.
अगर हम I को 1 लेंगे तो हमारा जो phi है वो बनेगा m इंटू 1, तो m जो है वो बनेगा phi। हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आर सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स is defined as the magnetic flux linked with one coil when unit current flows through another coil। सिंपली यहां देखो, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स किसके बराबर है? मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज फाई? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल, जब दूसरी कॉइल में कितना करंट फ्लो होगा? यूनिट करंट। तो है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन or mutual inductance of two coils is the magnetic flux linked with one coil when unit current flows through the another coil। एक और definition in terms of EMF हम define करेंगे इसको। क्योंकि जब हमने प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज की, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। सपोज E जो है, लेट E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ set up in one coil when current changes in the other coil, in the other coil। यहां देखो, E लिया मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन वन कॉइल व्हेन करंट चेंजेस इन द अदर कॉइल। देयरफॉर एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो E होता है दिस विल बी इक्वल टू d phi by dt। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई का वैल्यू आपको पता है, अभी निकाला, फाई है mi। फाई क्या है? mi। पुट वैल्यू ऑफ फाई फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से फाई का वैल्यू दे दो तो आपको बनेगा E इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ mi। m जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा बच्चों। E हो गया बराबर m di बाई dt। देखो बच्चों, इस इक्वेशन से मैं इस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की दूसरी डेफिनेशन दूंगा। सेकंड डेफिनेशन पहली दी थी मैंने इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अब दूंगा मैं इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बच्चों, यहां देखो, इफ di by dt is equal to 1 means if the current in one coil changes at the rate of unity, di by dt is rate of change of current, बताया कल। then from second we get E is equal to m into I, E is equal to m into 1, or m is equal to E। what is m? Coefficient of mutual inductance or mutual inductance of two coils। what is E? Induced EMF। तो यहां दूसरी डेफिनेशन, mutual inductance of two coils is the EMF produced in one coil when the current in the other coil changes at the rate of unity। दूसरी डेफिनेशन, hence the coefficient of mutual induction or mutual inductance of two coils is defined as the induced EMF produced in one coil, है ना, when the current in the another coil changes at the rate of unity। बात समझ आई? So I have given the two definitions, one in terms of magnetic flux, second in terms of induced EMF। अब आगे जाएंगे, इसके यूनिट्स दिखेंगे। देखिए बच्चों, जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसका भी यूनिट है हेनरी, इसका भी यूनिट है हेनरी। SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज
SI unit of mutual inductance is Henry. SI unit of mutual inductance is Henry. SI unit of mutual inductance is Henry. यहां पर भी हम हेनरी डिफाइन करेंगे, कल भी हमने हेनरी डिफाइन किया, यहां पर भी हेनरी डिफाइन कर सकते हैं हम। आपने अभी देखा E is equal to M di by dt, M निकालो, M हो गया E डिवाइडेड बाय di by dt। E जो है वो है M di by dt। बच्चों M निकालो, M किसके बराबर हो गया? E डिवाइडेड बाय di by dt। यहां देखो, क्योंकि मैं कौन सा सिस्टम पढ़ रहा हूं? SI सिस्टम। SI सिस्टम में EMF का जो यूनिट है दैट्स वोल्ट। इफ E is equal to 1 volt, di by dt, देखो di है करंट, dt है टाइम, तो इसका यूनिट होगा 1 इसको लूंगा मैं 1 एम्पियर पर सेकंड, इसका यूनिट होगा एम्पियर पर सेकंड। तो मैंने बोला अगर E होगा 1 वोल्ट, अगर di by dt होगा 1 एम्पियर पर सेकंड, M होगा 1 हेनरी, M होगा 1 हेनरी, तब ये इक्वेशन क्या बनेगी? इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, M के बदले में लिखूंगा 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर पर सेकंड। M का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट किया, ये बन गया 1H इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर पर सेकंड। यहां डिफाइन कर सकते हैं हम द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस or simply mutual inductance of two coils is said to be 1 Henry. यहां देखो बच्चा, coefficient of mutual inductance or mutual induction of coefficient of mutual induction of two coils is equal to 1 Henry if an induced EMF of 1 volt is set up in one coil when the current in the another coil changes at the rate of 1 ampere per second. ऐसे बता सकते हैं the coefficient of mutual inductance, mutual induction or mutual inductance of two coils is said to be 1 Henry when an induced EMF of कितना 1 volt is set up in one coil when the current in the another coil changes at the rate of 1 ampere per second, changes at the rate of what? 1 ampere per second. Let us now derive the expression for mutual inductance of two long coaxial solenoids. सेल्फ इंडक्शन में मैंने एक सोलेनॉइड का निकाला था कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहां पर चूंकि मैं म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ता हूं, लिहाजा मुझे दो कॉइल्स की जरूरत है, लिहाजा यहां मुझे कितने सोलेनॉइड्स की जरूरत है? 2 सोलेनॉइड्स की। एक में करंट चेंज करूंगा, दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखिए बेटा, यहां देखो, देखो बच्चों, सपोज यहां पर मेरे पास 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स है S1 एंड S2। मैंने 2 सोलेनॉइड्स लिए S1 एंड S2। These are the 2 coaxial solenoids having the same axis with solenoid S2 completely wound over solenoid S1। मैंने 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स लिए S1 और S2, और जो सोलेनॉइड S2 है इसको मैंने कंप्लीटली वाउंड किया किस पे? S1 पे। सपोज दोनों सोलेनॉइड्स की लेंथ जो है वो है L। मैंने 2 सोलेनॉइड्स लिए, ठीक है ना, S1 एंड S2। मैं ऐसे लिखूंगा S1 एंड S2 are 2 long straight solenoids. S1 and S2 are 2 long straight solenoids
are two long straight coaxial solenoids having same axis. Coaxial solenoids with S2 completely wound over S1. With S2 completely wound over S1. जो S2 को मैंने completely wound किया किस पे? S1 पे. ठीक है. Suppose L जो है वो है length of each solenoid. L है length of each solenoid. दोनों solenoids जो है उनकी length मैंने क्या ले ली? L. A is equal to area of cross section. Area of cross section of each solenoid. Area of cross section of each solenoid. एक का भी area of cross section area, दूसरे का भी area of cross section area. Suppose small n1 है, small n1, number of turns per unit length, यानी unit length. Number of turns in what length? Unit length. Number of turns in unit length of solenoid S1. जो solenoid S1 है जिसकी total length L है, इसकी unit length में मैंने कितने turns दिए? N1. यहां देखो, N1 is equal to number of turns per unit length in solenoid S1. S1 की जो unit length है यानी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर लेंथ है, उसमें कितने टर्न्स दिए गोरा? N1. कैपिटल N1 is equal to total number of turns in S1. टोटल कुल कितने टर्न्स है S1 में? N1. तो आपको पता है ये N1 होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल n1 इंटू लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड इंटू होगा L. ठीक है बच्चा? ओ भैया, N1 जो है ये इसमें टोटल टर्न्स है. टोटल टर्न्स होंगे इसमें, जो यूनिट लेंथ कितने टर्न्स होंगी मल्टीप्लाइड बाय कुल कितनी लेंथ है. ठीक है बच्चा? N2 is equal to number of turns per unit length of S2. per unit length of S2. N2 जो है वो अब मैंने लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ S2. S2 की यूनिट लेंथ में मैंने कितने टर्न्स लिए? क्या लिए? N2. कैपिटल N2 जो हो वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2. लिहाजा N2 जो होगा वो होगा स्मॉल n2 इंटू L. स्मॉल n2 इंटू L, चूंकि इसकी यूनिट लेंथ में कितने टर्म्स है? N2. तो टोटल टर्म्स कितने होंगे? N2 इंटू L. फिर से ये देखो, दो सॉलिनॉइड्स दिए मैंने, कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स हैविंग सेम एक्सिस. जो S2 है इसको मैंने कंप्लीटली बाउंड किया S1 पे. तो मैंने बोला दोनों सॉलिनॉइड्स की लेंथ जो है वो है L. एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है A. एक में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिया मैंने N1, एक में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिया मैंने कैपिटल N1. तो कैपिटल N1 होगा स्मॉल n1 इंटू L, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ. इसी तरह फिर N2 लिया, फिर कैपिटल N2 लिया. सपोज I1 जो है दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू सोलिनॉइड S1. I1 is equal to current flowing through solenoid S1. जो solenoid S1 है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? I1. सपोज B1 जो है that is magnitude of magnetic field set up in S1. क्योंकि जैसे ही सोलिनॉइड में करंट फ्लो हो रही है उस सोलिनॉइड में उसी वक्त क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड किसके बराबर है? म्यू नॉट एन आई, है ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड म्यू नॉट एन आई. देखो अब I1 किस में करंट है? S1 में. S1 में जो मैग्नेटिक फील्ड सेट हुआ वो कितना है? B1. एज पर द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड आपको पता है B1 होगा बराबर किसके बराबर होगा बच्चों? ये होगा म्यू नॉट N1 I1. म्यू नॉट N1 I1. This is the expression for the magnetic field due to solenoid. In the yesterday's Zoom class we discussed it. अब देखो N1 का वैल्यू लगाओ.
इसमें N1 का वैल्यू निकालो, देखो इसमें N1 का वैल्यू निकालो, N1 किसके बराबर होगा, कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय L, और हम लिखेंगे B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय L इंटू I1। B1 निकला मेरा म्यू नॉट कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय L इंटू कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय L इंटू I1। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे, बस हो गया, कुछ नहीं करना अब हमें। नाउ सी हियर, B1 जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इनसाइड द सोलेनॉइड S1, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, दिस इज B1। चूंकि सोलेनॉइड S2 जो है ये है कंप्लीटली वाउंड, किसके ऊपर कंप्लीटली वाउंड है, S1 पे, लिहाजा जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1 होगा वही होगा थ्रू S2। Why? Because S2 is completely wound over S1। जितनी लाइन्स S1 से पास हो जाएंगी उतनी लाइन्स किससे पास हो जाएंगी, S2 से, है ना, ठीक है ना। Since S2 is completely wound over S1, since S2 is completely wound over S1, therefore total magnetic flux linked with S2 is equal to total magnetic flux linked with S1, चूंकि S2 जो है this is completely wound over what, over S1, therefore the total magnetic flux linked with S1, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स S1 में पास हो जाएगा उतना किस पे हो जाएगा, S2 पे। अब यही निकालेंगे, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस एम्प्लाइज मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of magnetic flux linked with each turn of S2 is equal to magnetic flux linked with each turn of S1। भैया यहां देखो, चूंकि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1 है बराबर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2, क्यों, S2 चा पूरा उत्पादन, लिहाजा युद्धा मैग्नेटिक फ्लक्स S1 चे एक्सटर्नल मंद आसी तुझे S मैग्नेटिक फ्लक्स S2 चे एक्सटर्नल मंद, फिर युद्ध में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद each turn of S1 S2 is equal to magnetic flux linked with each turn of S1। पहले हम ये निकालेंगे। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन पता है, phi is equal to B into A। चूंकि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है यूनिफॉर्म, हर एक टर्न में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B होगा, और हर एक टर्न का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी सेम है A, लिहाजा हर एक टर्न के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा B into A। शाबाश। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of S1 is equal to B, यानी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दैट टर्न, into area of that turn. What is the area of that turn? A. But here what is the magnetic field? B1. This is B1A. Therefore जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S1 हो गया B1A, लिहाजा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S2 वो भी कितना हो गया, B1A, क्योंकि वो बराबर है। Therefore मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of S2 is equal to B1A. Therefore magnetic flux linked with each turn of S2 is equal to B1A. That will be simply equal to the magnetic flux linked with each turn of S1. Now total magnetic flux linked with S2
वो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ S2 इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2 वो हो गया किसके बराबर? शाबाश, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न यानी ईच टर्न ऑफ S2 इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2। ठीक है ना? नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with S2 total magnetic flux linked with S2। देखो बच्चों, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे 521 से। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with S2 इज इक्वल टू, इसको मैंने किससे डिनोट किया? 521 से। यह होगा बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of S2। वो कितना निकला? वो निकला B1A इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न इन S2। वो क्या है? N2। वो है बच्चों N2। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2 वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S2 इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना? आके टर्न कोता फ्लक्स जैसे कुल कोता टर्न आसा। तो हम लिखेंगे दिस एम्प्लाइज 521 इज इक्वल टू B1A N2। देखो बच्चों, इसमें वैल्यू करेंगे सब्स्टिट्यूट, पुट वैल्यू ऑफ B1 एंड N2, पुट वैल्यू ऑफ B1 एंड N2, पुट वैल्यू ऑफ B1 एंड N2। तो आपको क्या बनेगा बच्चों? बोलो क्या बनेगा बच्चा? आपको बनेगा 521 इज इक्वल टू B1 का वैल्यू म्यू नॉट N1 शाबाश I1 डिवाइडेड बाय L इंटू A इंटू N2 जो होगा N2। देखो यहां देखो मेरी तरफ, N2 है बराबर N1 इंटू L। ठीक है ना? N1 इंटू L। ठीक है ना? तो यहां पर आपको क्या करना है? किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है? N2 का वैल्यू दे दो। वो क्या है? N1 इंटू L। N2 का वैल्यू दे दो, वो होगा N1 इंटू L। ठीक है? N2 का वैल्यू व्हाट इज दैट? दैट इज N1 इंटू L। एक मिनट यहां देखो, B ना कोई जरूरत नहीं वैल्यू देना, N2 का वैल्यू नहीं देना है। डोंट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ N2 का वैल्यू नहीं देंगे। इनटू है N2 को ऐसे ही रखेंगे N2। ठीक है? तो आपका 5-2 जो है 5-2 बनेगा म्यू नॉट N1 N2 को यहां लाएंगे N1 N2 I1 डिवाइडेड बाय L इंटू A। इसको नाम रखो इक्वेशन नंबर 3। यहां पर मैंने खाली B1 का वैल्यू लगाया। B1 का वैल्यू किसके बराबर है बच्चा? म्यू नॉट N1 I बाय L। ठीक है ना? इंटू A जो है A अपना है, इंटू है N2। तो N2 को यहां लाओ, ये बनेगा म्यू नॉट N1 N2। ठीक है? I1 A डिवाइडेड बाय L। नाउ आपको पता है जो फाई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है दैट्स प्रोपोर्शनल टू करंट। तो सिमिलरली यहां पर नाउ जो 521 होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू I1। 521 जो होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू I1 और जो 521 होगा वो होगा M21 इंटू I1। 521 जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू I1 क्योंकि करंट कितनी है? I1। तो 521 होगा M21 इंटू I1। वायर जो आपका M21 है दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 ऑफ सोलेनॉइड S2 विद रेस्पेक्ट टू S1 जो आपका M21 यहां पर है ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ S2 विद रेस्पेक्ट टू S1। अब ये 521 का वैल्यू जो है इसको हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। ये जो है ये इक्वेशन, तो सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट वी गेट? करो सब्स्टिट्यूट बेटा। therefore third becomes क्या बनेगा? थर्ड बता फटाफट। 521 के बदले क्या लिखेंगे? शाबाश, क्या लिखेंगे? M21 शाबाश M21। ठीक है ना? I1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाय L I1 इंटू A। I1 और I1 कैंसल। ठीक है? तो आपको क्या निकला बच्चों यहां पर? शाबाश
बोलो क्या निकला आपको? आपको निकला M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाय L इंटू A। आपको निकला M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाय L इंटू A। इसको रखो इक्वेशन नंबर 4। देखो यहां पर म्यू नॉट कांस्टेंट है, यहां पर नंबर ऑफ N1 और N2 इस सोलेनॉइड के लिए कांस्टेंट है। नो डाउट N1 एंड N2 आर वेरिएबल्स बट फॉर दिस सोलेनॉइड दे आर कांस्टेंट्स। इन सोलेनॉइड्स के लिए क्या है? कांस्टेंट। A जो है वो कांस्टेंट है, L जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड वो भी यहां पर कांस्टेंट है। तो ये निकाला हमने M21, ये निकाला हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ व्हाट? सोलेनॉइड S2 विद रिस्पेक्ट टू S1। सिमिलरली अगर यहां से S2 से करंट आएगी I2, वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी S2 में? V2, ठीक है ना? उस वक्त हम दूसरा निकालेंगे, हम निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। उसके बदले यहां पर अभी ये μ21 था, अब उसके बदले यहां क्या आएगा? μ12। वहां था μ21, इसके बदले क्या आएगा? μ12। ये बनेगा μ12 इज इक्वल टू म्यू नॉट, बाकी सेम आएगा, N1 N2 डिवाइडेड बाय L इंटू A। सीधे आएगा क्योंकि वहां निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ S2 दैट विल बी इक्वल टू B2 इंटू A। फिर that will the same as that of S1। उसके बाद हम निकालेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1। फिर ये फार्मूला लगा के हमें यहां पहुंच जाएंगे M12 पे, ठीक है ना? इसको रखो इक्वेशन नंबर 4। फिफ्थ, व्हाट इज M12? दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे, हमें क्या निकलेगा? M21 is equal to M12। from fourth and fifth we get M21 is equal to M12। तो दोनों को हम बराबर रखेंगे M से। M21 किसके बराबर है? M12 है ना बराबर, तो उस दोनों को किसके बराबर रखेंगे? M। therefore M किसके बराबर निकलेगा? M निकलेगा बराबर, शाबाश, चाहे M21 लिखो चाहे M12 लिखो, तो M किसके बराबर निकलेगा? शाबाश, म्यू नॉट, शाबाश, N1 N2 divided by L into A। This implies M is equal to म्यू नॉट N1 N2 divided by L into A। This is the expression for coefficient of mutual inductance of two long coaxial solenoids। This is the expression for the mutual inductance of two long coaxial solenoids, ठीक है ना? This is the expression for the mutual inductance of two long coaxial solenoids having iron core। अगर हम ये iron core solenoids जो थे, इसको हम किसी मटेरियल से रिप्लेस करेंगे। If the core of the two solenoids, if this core is replaced by some material, ठीक है ना? तो उस वक्त ये जो M है इसको हम ऐसे लिखेंगे, M dash is equal to म्यू है परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कोर, ये था परमिबिलिटी ऑफ एयर, ठीक है ना? तो ये बनेगा म्यू, शाबाश, N1 N2 डिवाइडेड बाय L into A। if the iron core is replaced by some material having magnetic permeability कितनी? म्यू, ठीक है ना? तब हम क्या लिखेंगे? M dash, M के बदले क्या लिखा? M dash is equal to म्यू N1 N2 divided by L into A। मगर बच्चों आपको पता है जो म्यू है ये होता है बराबर म्यू R into म्यू नॉट। तो म्यू आर क्या है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। म्यू जो है दिस इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर जो है दिस इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको M डैश निकलेगा, क्या निकलेगा बच्चों? शाबाश, बताओ क्या निकलेगा? शाबाश, म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाय L इंटू A। मगर म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाय L into A वो किसके बराबर है? M। What is M? M is the mutual inductance of two long straight iron cored solenoids। तो हमें निकलेगा M dash is equal to म्यू R into M। इसका मतलब है the
coefficient of mutual inductance of two long coaxial solenoids having a core made of some material is equal to relative magnetic permeability times, ठीक है ना, the mutual inductance of same two solenoids with air in between, with air as their core, ठीक है ना. This completes this beautiful question.